Good evening, everyone. This will be episode number 3, and today we are with Akhil Rawat, batch number 2017-18. Right? Yes, भैया. So, Akhil Yes, भैया. Rawat, hello, welcome. थोड़ा सा आप इंट्रो दे देंगे अपना. Okay, भैया. Yeah, myself Akhil Singh Rawat. I study in class 9th at Sainik School Godakhal. I was admitted in Sainik School Godakhal in the year 2018. I was in the coaching SASG Education Hub in the years 2017 to 2018. I joined SASG Education Hub in 2017 at the month of October or November, September, October. Yes. And So, yes. if you have mentioned that, तो मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपने जो ज्वाइन करा था वो आपने ज्वाइन करा था सितंबर अक्टूबर आई थिंक. Yes, भैया. ओके, अक्टूबर में ज्वाइन करा था और जो बैच स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल से. नाउ एग्जामिनेशन जो होता है मैं जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ. जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका जनवरी में होता है. जनवरी बिगिनिंग, दैट मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ जैन, दैट मीन्स 6, 7 और 8 जनवरी. ये आपका प्रोबेबल डेट होता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सैनिक स्कूल ऑल इंडिया जो एंट्रेंस होता है. और अखिल ने ज्वाइन करा था अक्टूबर में, कहीं ना कहीं मिड अक्टूबर में ज्वाइन करा था. सो ही स्टडीड फॉर 2.5 मंथ, 2 मंथ एंड कहीं ना कहीं 2.5 मंथ के आसपास पड़ा था. अखिल, एक क्वेश्चन जो आपके लिए थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करेंगे कि क्या 2 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है? क्योंकि आपने तो करी है. Yes, भैया. यस. Yes, भैया. तो पॉसिबल है. If someone wants to do, yes, sir. ठीक है, So it depend on your hard work and the work and the type of study you did in those 2.5 months. Yes. So before October you were not in coaching, but क्या आप प्रिपेयर कर रहे थे घर पे या No, कुछ भैया. नहीं? I was just studying maths, normal maths of school. So you were just and science. preparing for studying for your school. You were not Yes. at all preparing before October. ठीक है. Yes, So भैया. what changes you did after that? October के बाद आपने क्या changes लाए ऐसे? I started working hard. When I came back to my home, I just started working in my maths, and the learning part I did it in morning. I don't like to wake up in morning, but I have to wake up, and then before going to tuition in the morning, I just revise the things with what I learned in the night. I used to study till 10:30 or 11 in the night and do my work if it's there, and if it's not there, I was used to learn or revise the things. Okay, so suddenly there was a change in your schedule. Suddenly there was a change. You started coming to coaching. So burden आया था यहाँ पर या आपके नॉर्मल था ये सब? सर बर्डन तो था सर स्टार्टिंग में. अच्छा, स्टार्टिंग में बर्डन था, उसके बाद फील नहीं हुआ? यस सर. ओके. नो सर. मतलब अखिल को देखकर भाई ये तो लग सकता है कि हाँ 2 महीने में आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये है हार्ड वर्क लगता है. ठीक है, क्योंकि आपने इसको मेंशन करा था. Yes, इसलिए मैंने स्टार्ट ही यहाँ से करा था. ये क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी था क्योंकि आप ही हो जो इस तरीके से 2 मंथ आया और सेलेक्ट भी हो गया. अभी तक फिलहाल आप ही एक स्टूडेंट हैं ऐसे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए था ही था. ओके. अखिल, 6th में आपने ज्वाइन Yes, करा, sir. आप 9th में हैं, तो काफी साल हो चुके हैं. आई थिंक 4th ईयर है आपका सैनिक स्कूल में. कैसी रही जर्नी? Yes, sir. So journey was full of ups and downs. As in starting, as you know, sir, I was I not. know. I was feeling homesickness in school. I just want to come home, and just सबसे I ज्यादा was जो होमसिक फील करा remembering था वो my अखिल ही home. था अभी तक. Yes, sir. You were crying there and your mother was also crying and your father used to call me. थोड़ा समझा दीजिए प्लीज इधर.
Yes, ठीक है। sir. हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए, आपके मुंह से सुनेंगे आज। Yes, sir. At starting, I was feeling homesickness, sir, and then after some time, I made some friends, and sir, then they told me, sir, how to. It was a normal life for me. It was just normal things. Everything as in starting, I have to wake up so early without my mom and just go for morning walk, which was very hard for me because I was not going to morning walk ever. I just go in scooty with my mom in tuition, or sometime I take my cycle and then go to tuition. And so, and in the late nights during the exams, we have to study late night. So it was very painful, sir. We have to study for much time in night, and so we have to wake up early at 5, and so we study till 11 to 12. So not only me, sir, all the students of my class or my house studied till 11, 12 in school. So it was very painful journey start in the starting, but after some time, I just catch up with the routine, and so then I did not feel anything, Okay, and then it because become normal for me. okay, because I remember that when you were in class 6, you were feeling homesick. But when because in class 7th and 8th, आप जब भी घर आते हैं, आप पढ़ने आते हैं, मैं आपसे हर बार बात करता रहता हूँ, तो आपने मुझे यही कहा था कि स्कूल जल्दी से खुल जाए, रूटीन स्कूल में ठीक है। शुरुआत में आप कह रहे थे कि Yes, नहीं sir. वापस जाना है, बाद में आप कह रहे थे कि छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, रूटीन मिस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस आपने फ़ील करे और टाइम टाइम पे आपने बताया भी था। ठीक है, तो बहुत Yes, अच्छा sir. है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल अप्स एंड डाउन से भरा रहा। Yes, sir. ओके, कुछ चेंजेस जो आपने फ़ील करे इन योर प्रीवियस स्कूल, यू वर इन देहरादून वर्ल्ड स्कूल, आपको वर्ल्ड स्कूल में थे, क्लास 5 तक आपने यहाँ पढ़ा है, फिर आप सैनिक स्कूल गए, तो कुछ चेंजेस अच्छे बुरे जो भी चेंजेस आपको फील हुए, स्टडी रिलेटेड या कोई और रिलेटेड? Study is given priority in DWS school. So whereas in Sainik school, we get to play everything and just we can just enjoy everything as we can enjoy studies as well as games. We get sufficient time for playing and sufficient time for studying. So everything is in the proper ratio. ओके, इट इज एवरीथिंग इज इन Uh, प्रॉपर वे। वर्ल्ड स्कूल में जहाँ यू सेड कि देयर वाज थिंग्स ओनली फॉर स्टडी, right? yes, Study is given preference in Dehradun World School. There was no as such sports involved in your curriculum, right? But in Saini school you said yes, sir. बैलेंस है एक तरीके से दोनों चीजें। ठीक है, तो दिस इज वन चेंज दैट इज फॉर। Yes, इसके sir. अलावा कोई? So we can get much opportunities than in other schools. So we do not get so much opportunities as only studies given priority, whereas in Sainik school we get everything. So we can play sports, we can just go in NCC, or if you are good in studies, you can just clear the NDA, and then you can go to Army, Navy, or Air Force. So So and if you are good in sports, also you can also get some medals or like that, okay, so you get opportunities or in some sports also certificates, etc. if you're good at this, Yes, sir. obviously. So one Yes, thing sir. is that there is more opportunity you get when you are in same school. Okay, so what challenges do you face during your preparation? So we have to wake up at early in the morning, which was I was not used to, and study till late night as there was much homework, and Because you have so to manage school and tuition and both. full. Yes, sir. And so it was 7 to 8 hours in school, and after coming home, so we have to complete the homework of the earlier day of yesterday, and then we have to go to tuition, and then again come home, and then we have to do again the homework, and
can wake up early in the morning and revise the things we have done in earlier classes. A very tough schedule you had, but I हो गया था है ना एकदम से. Today was burden. Yes. स्टार्टिंग में बर्डन, क्योंकि हाँ आपका वो बर्डन दिखता भी था, और क्योंकि जब आपने सेशन ज्वाइन करा था तो आई स्टिल रिमेम्बर शौर्य उस टाइम पे था, और शौर्य ही हुआ करता था उस टाइम पे बैच का टॉपर, और अखिल कुछ 10-15 दिन तक रहा, और उसके बाद अखिल कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में आगे जाने लग गया था. तो वो भी हमने देखा एक टाइम कि कैसे आप 10-15 दिन Yes. बाद चीजें बदलने लग जाती हैं. तो यू कैन चेंज थिंग्स फॉर यू, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. ओके, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं तो future plan. यस बोलिए. So future planning, sir, firstly NDA and then sir in Navy. अच्छा, एनडीए से नेवी ज्वाइन करने का प्लान है. ठीक है, ये एनडीए वाला हमने पार्ट कवर करा था, आलोक के साथ कवर करा था, और ये सब लोगों को हम उस दिन भी इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि व्हेन यू आर इन सैनिक स्कूल, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि इज देयर possibility, so yes, there are more possibility of getting into NDA if you are studying in Sainik School or RIMC or RMS, because फोकस है उन चीजों के लिए, और आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती हैं. ये अखिल सॉरी आलोक ने ये मेंशन करा था. तो इस चीज पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एनडीए में किस तरीके से स्कूल आपकी हेल्प कर रहा है, बल्कि आई थिंक अभी लास्ट मंथ आपके स्कूल के बच्चे अभी यूपी में थे, काफी सारे बच्चे थे. Yes, sir. क्योंकि आलोक ने मुझे वीडियो भेजा था, उसने मुझे एक वीडियो शेयर करा था, उसमें काफी सारे बच्चे वो घोड़ा खारियंस थे, तो वो उन्होंने आपके स्कूल का सॉन्ग भी वहां पर था, वो सारा कुछ हुआ था, तो वो भी हमने एक वीडियो देखा था. कभी हम उसको भी अपलोड करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, अखिल, और कुछ Yeah. डिफिकल्टी आती है बोर्डिंग में रहकर? Yes, sir. Sir, firstly is homesickness and sir, etc. And sir, at the time of exam, sir, you don't have any source of teaching. So like as in home, we can go to coaching, etc. So but in school, we have to do self-study. And if you have doubts, sir, you have to ask a roommate or sir, if you early morning, sir, before breakfast, you have to go to teacher and then clear the doubt. सो ये एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप बोर्डिंग में हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा ट्यूशन अवेलेबल नहीं है. Yes. तो आप अपने रूममेट्स पे डिपेंडेंट हैं, और अर्ली मॉर्निंग टीचर का एक्सेस है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते थे. Yes, sir. अच्छा, ये एक्सेस है. Yes. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हम बोलेंगे. बट एक चीज जो आपने मेंशन करी थी उन स्कूल के बारे में, आपने कहा था कि आंसर्स हमें ऐसे कोई फ्रेम नहीं करने पड़ते. आपने कहा था कि आंसर्स आपको सिर्फ लिखना होता है, सही है ना? ऐसा कोई वो नहीं है. Yes. लेकिन आप मुझे Yes, बता sir. रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जो लिखा है उसे एज इट इज लिखना है. जैसे स्कूल्स में आजकल काफी होता है, टीचर्स कहते हैं कि जो लिखाया है वो लिखिए. आपने इस चीज को मेंशन करा था एक दिन कि वहां ऐसा नहीं है. थोड़ा सा अखिल का मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा उसको. कोई बात नहीं. हाँ अखिल, आपने मेरा क्वेश्चन सुना? Yes, sir. हाँ जी. तो क्या आपको क्या लगता है इसमें, ये ठीक है या? क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है. आप अपने आंसर्स खुद लिख पा रहे हैं, है ना? ऐसी कोई Yes, sir. बाउंडिंग नहीं है, आपने कहा था. आपका क्या ओपिनियन है इस पे? So it is a good habit, sir. If you don't know some answers, so then you can make your answer of your own. So as in some other test or some examinations, outer examination. So you don't know what's the syllabus, sir. And if it's written, if Okay. it's not OMR, sir, yes, sir, you have to frame the answers of your own. Yes, you have to frame your answers. So this is kind of learning, I'll say, है ना? This is kind of a preparation for future.
क्योंकि फ्यूचर ऐसा नहीं Yes, होता sir. ना, और लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आपके पास आंसर फ्रेम होके मिलेगा, है ना। क्योंकि काफी है ये एक बैड ट्रेंड में इसे बोलूंगा, ये अच्छा ट्रेंड तो नहीं है मेरे हिसाब से कि स्कूल्स अपने आंसर्स लिखवाते हैं और ये सिखाया जाता है कि आप अ, यही आंसर लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। काफी जगह ऐसा होता है, या टीचर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बच्चे के वर्ड से और मार्क्स देते तो हैं बट उतने नहीं देते हैं जितने मिलने चाहिए एक्चुअली। ये एक बैड ट्रेंड है। तो Yes, ये sir. चीज मुझे जरूर प्लस लगी, आपने उस दिन बताया था, मैंने उस दिन ये बात बोली थी कि ये बहुत अच्छी चीज है ना, इससे आप लिखना सीखते हैं। ठीक है, क्लास 6 में जब Yes, आप sir. ज्वाइन करते हैं तो आई थिंक आप लोगों का सुबह जो उठने का जो रेसिंग वगैरह जो भी आपको सुबह कराते हैं, जॉगिंग वगैरह जो एक लंबी लंबी होती है, वो शायद आपकी नहीं है ना, ऐसा कुछ है? No, sir. सर सबकी वाह, होती है सर वो। सो ऐसा सर जो स्टार्टिंग की छोटी क्लास से होती हैं सर, 6 एंड 7 से उनको थोड़ा कम होता है। अच्छा उनका ये सब थोड़ा सा स्टार्टिंग का फेज है तो कम रहता है। ओके, हाँ, क्योंकि आपने एक दिन ये चीज बताई थी यस मुझे, सर। तो मुझे वो ध्यान है कि आपने कहा था कि जब आप शुरू में ज्वाइन करते हैं तो ये चीज हम मेंशन करना चाहते हैं सबके लिए कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करते ही आपको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कराने में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एज का ध्यान दिया जाता है, छोटा बच्चा जब जाता है तो फिजिकल चीजें इतनी ज्यादा नहीं कराई जाती हैं क्योंकि वो इतना फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है कहीं ना कहीं स्टार्ट के फेज में। तो इस चीज का भी वहाँ ध्यान रखा गया है, ठीक है। ओके, कुछ आपके अखिल, क्योंकि आप एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, कुछ टिप्स जो आप देना चाहेंगे औरों को? Sir, we have to just study hard work, and sir, so whatever we study, sir, we have to just keep it in our mind, and sir, do not go here and there while studying. Sir, the time you study, sir, you have to sit properly and study, and sir, the time you play, you have to enjoy, and sir, the time you play, the time you study, you have to study properly. ओके, सो द टाइम यू So आर स्टडिंग यू कैन नॉट डाइवर्ट योर माइंड, है ना, आपको उस टाइम पे बैठना ही है। और जब आप खेल रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छी चीज है कि खेलना भी जरूरी है, तो उस टाइम पे आप एंजॉय करें। कुछ ऐसी चीज अखिल जो आपने yes. अपने प्रिपरेशन के दौरान करी थी और आपको लगता है कि उसने बड़ा हेल्प करा, ऐसा कोई चीज कोई होती है ना किसी का? Sir, nothing, sir, but studying till late night, or sir, so the homework you gave us, sir, that helped us. प्रैक्टिस, Yes, sir. practice is important, especially in maths. I'll say practice is very important because you cannot learn maths. You cannot be like doing some question will help. No, this is not right. If taking maths, तो आपको maths जो है वो properly करनी पड़ती है, बहुत सारी practice लगती है ना। जीके कैसे कवर किया था आपने? So GK, sir, I do not learn the GK, sir, but I just said depend on my general knowledge, and so I didn't learn the GK. क्योंकि Sir, जीके, हाँ, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। I just read the things 2 3 times, and sir, whatever I got, sir, I just tell you in, so when you ask, and sir, the thing that which I do not get, sir, that I leave. So ओके, as GK, you have to just, as GK, you have to just memorize the thing, as sir, it just puts pressure on your brain. ऑब्वियसली क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, तो आप ऐसे नहीं Yes, sir. उसको कवर कर सकते, बहुत वास्ट है। और जीके मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन करा क्योंकि आप 2017 के बैच के, 2017 का बैच जो था, 2018 में जो एंट्रेंस हुआ था उसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, आप लोगों के थोड़ा सा चेंजेस हुए थे और वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आए थे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में। ऑल इंडिया सेविंग स्कूल ने ये चेंज करा था, वहां से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था और क्लास 6 में भी बहुत सारी चीजें वहां पे ऐड ऑन हुई, है ना। और आप लोगों को मुझे ध्यान है Yes, sir. लास्ट के टाइम में, ये दिसंबर के आसपास का मुझे ध्यान है, दिसंबर के आसपास ही हम लोगों ने ये स्टार्ट करा था थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में ये चीज पता चली थी कि इस तरीके के चेंजेस इस बार होने वाले हैं। तो इतनी प्रिपरेशन उस साल थी नहीं जीके की, Yes, है ना। ठीक है, इजी स्कोरिंग yes, sir. सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें?
सर इजी जो स्कोर हो सकते हैं वो कौन से हैं, जो सब्जेक्ट इजी हैं जिनमें ज्यादा स्कोर करना चाहिए कहीं? नेटवर्क इश्यू मेरे ख्याल से। ओके ठीक है, बताइए। Sir, easy scoring subjects are sir maths and science. So it's not much tough in maths and science in sir junior classes mostly. So यस, till दैट्स seventh and eighth, sir in yes, sir in maths and science you can score good, and so these are main subjects. Sir, maths contains 150 marks in class 6, and in यस, ninth it's contained 200 or 200, 250. And so राइट, science also 100 or 50 marks. 50 So मार्क्स। if you score good in these two subjects, so in these two subjects, so if you score good, so then you can just create a good score. And sir in GK, SST, etc. So you just learn something, and just on your basic knowledge, so you can just score some marks of, and so you can create a good score. While if you learn, if you memorize maths and science. So this is one good thing that you mentioned is इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट आर मैथ्स एंड साइंस, और एसएसटी आपने कहा कि अपने बेसिक नॉलेज पे ही हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना? Yes sir. और सही है कहीं ना कहीं वो, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि द सिलेबस इज वेरी वास्ट, बट कीपिंग इन माइंड दैट ये क्लास 6 का एंट्रेंस है, तो क्लास 6 का एंट्रेंस है तो ये इतना डिफिकल्ट साइंस नहीं आता है, इसमें इतना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं आता है, तो ये स्कोरिंग बन जाते हैं। और जहां तक एसएसटी का सवाल है, तो एसएसटी बिल्कुल मैं पर्सनली भी इस चीज को मानता हूँ कि एसएसटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल आपको अपने बेसिक नॉलेज पर ही ये कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा और वहीं आपको डिपेंडेंट रहना होगा, राइट? Yes sir. तो अखिल, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ Yes ऐसी चीजें जो sir. आप बताना चाहोगे, कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा, Sir about what? कोई भी चीज जो आप शेयर करना चाहें, ऐसा कोई क्वेश्चन जो हम मेंशन ना कर पाए हों और आपका होगा तो आप बता सकते हैं हमें। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ चीज स्किप कर गए हों, आप उस चीज को मेंशन करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल योर्स। अखिल, थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी है अखिल का, तो थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है इस चीज का। ओके, थोड़ा सा ये नेटवर्क चला गया था, ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन फिर से करता हूँ। कोई ऐसी चीज जो हम मेंशन नहीं कर पाए हैं और आप बताना चाह रहे थे, ऐसा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं? कोई भी इंसिडेंट होगा ऐसा, याद रहता है ना, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो याद रहते हैं, कुछ भी ऐसा आप मेंशन करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। No sir, I don't think so. क्योंकि क्वेश्चंस मैंने लगभग पुट करे, क्योंकि मैं कोशिश ये है हमारी कि हम हर बच्चे के साथ जो बात करें क्वेश्चन को रिपीट ना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बार बार हम रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं हर उसमें। क्योंकि आपसे मेरा जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यही था कि क्योंकि आप क्लास 6 में गए थे, तो कहीं ना कहीं छोटी एज में गए थे, उस टाइम पे आप काफ़ी छोटे थे, आप तो मैच्योर हो गए हैं। तो वो मुझे थोड़ा-सा ज़रूर ये बताना था कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और किस तरीके से आप कोप करते हो उन चीज़ों के साथ। ठीक है, ओके अखिल, थैंक यू सो मच Yes sir. जॉइन करने के लिए। अ, Welcome. ओके, टेक केयर, सी यू। Okay, so this was Akhil. He was from batch 2017 and 18. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू जरूर था, तो कुछ चीज़ों में आई थिंक क्लियर नहीं हो पाई चीज़ें। कोशिश करेंगे हम इसको दोबारा कभी कर पाए, बट फॉर नाउ यही है हमारा। और देखिए यहाँ पर जो क्योंकि क्लास 6 में इन्होंने ज्वाइन करा था और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट अपने रह चुके हैं ये,
2017 का जो बैच था उसके बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। इनफैक्ट जब इनका क्लास 6 का रिजल्ट आया था तो वो भी मुझे ध्यान है कि बहुत अच्छा इनका स्कूल में स्कोर था। आई थिंक 100 में से इनके 2-3 में तो मेरे ख्याल से 100 ही थे, 2-3-4 में 100 थे। क्लास में फर्स्ट तो आते ही थे, तो ब्रिलियंट माइंड तो था ही। यहाँ पर जो एक चीज देखने लायक थी उस साल, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। अखिल ने ज्वाइन करा था अक्टूबर में, अक्टूबर मिड इनफैक्ट एंड के आसपास शायद ज्वाइन करा था बैच इन्होंने। और 2 महीने के आसपास इन्होंने पढ़ाई करी थी। 2 महीने में प्रॉपर अपना पढ़कर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने चीजें करी थी और सिलेक्शन भी इनका हो गया था। तो 2 महीने में ये चीजें हो सकती, बट अगेन वो कह रहे हैं ना, जिस तरीके से कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉपर्ली पढ़ना होगा। तो यही इनका माइंडसेट स्कूल में भी रहता था। और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की मदद, मैंने उनसे भी मैं कई बार कहता हूँ कि बड़ा रोल उनका रहता है इन चीज़ों में, क्योंकि पेरेंट्स का बड़ा रोल है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से सिलेक्शन मिल सकता है, तो सिलेक्शन के लिए पेरेंट्स का बड़ा रोल है। आपको समझना होगा कि फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा सोच होनी चाहिए आपकी। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फ्यूचर के लिए क्या बेटर रहेगा। एज अ किड, छोटा बच्चा तो इस चीज़ को नहीं समझ सकता है, बट पेरेंट का यहाँ पे बड़ा रोल रह जाता है। चाहे वो मदर है चाहे फादर है, इनका रोल बड़ा ही। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सारे पेरेंट्स इनफैक्ट अभी तक के जो सिलेक्शन उनमें से 3-4 लोग तो मैं जहाँ पर मैं देखता हूँ मदर का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उनमें से एक अखिल है। अ, हमेशा मैंने इनकी मदर से जब भी बात करता हूँ, मैंने ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करा है कि इनका बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में, क्योंकि गाइड कौन कर रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 महीने सफिशिएंट सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि आप अपने स्कूल की पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 5 में जब हैं और आप स्पेशली जब आईसीएसई के स्कूल में, क्योंकि सीबीएसई के स्कूल में वैसे तो अभी मैंने रिसेंट में देखा है कि थोड़ा सा सीबीएसई के स्कूल में भी रिसेंट ईयर्स में ऐसा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा बुक यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो मैथ्स की प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक रहती है, क्योंकि 150 जो है वो मैथ्स है। दैट इज यू नो द मोस्ट मार्क्स यू गेट फ्रॉम मैथ्स। तो वो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि उन्होंने मेंशन करा कि मैथ्स और साइंस, ये 2 चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है वो 150 मार्क्स का है, साइंस जीके के साथ कंबाइंड होकर 50 मार्क्स का आता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और एसएसटी बहुत छोटी एज है लेकिन बहुत अच्छी चीज उन्होंने मेंशन करी कि एसएसटी में आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने जनरल नॉलेज पे। आप जो भी जनरली आप जो जानते हैं कॉमन सेंस के हिसाब से, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी आपने छोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि एसएसटी इज वेरी वास्ट एंड फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 और क्लास 6 I personally don't feel that SST can be covered by such a small boy. ठीक है, this is not possible. तो एसएसटी में आपको अपना बेसिक जो है सेंस वही यूज करना होगा, और थोड़ा बहुत तो पढ़ाई ऑब्वियसली करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो इसमें आते हैं वो आपकी रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है। इंग्लिश बहुत ईजी आती है, बहुत ईजी इसमें वर्ड मीनिंग आते हैं, आपको वही पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें आपको अपने आंसर ढूंढने हैं। और छोटे मोटी चीजें आती हैं, इज एम आर वर्ड का यूज आता है, तो स्पॉटिंग एरर की ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं आते क्लास। बट स्कोरिंग सब्जेक्ट अगेन मैथ्स और साइंस ही रहता है। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ। रीजनिंग जो मैं मेंशन करता हूँ कहीं ना कहीं क्लास में कि रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि रीजनिंग आसान है, बट खेल के लिए शायद ये चीज दूसरी है। बट हाँ, रीजनिंग मैं फिर से मेंशन करूंगा कि रीजनिंग है इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि लिमिटेड है सिलेबस। क्योंकि मैं फोकस करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि सिलेबस लिमिटेड, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में मानता हूँ कि ये है जो कि लिमिटेड सिलेबस वाले सब्जेक्ट है यहाँ, क्योंकि साइंस थोड़ी लिमिट है, बट इतना भी नहीं है कि हम सिक्स के बच्चे को साइंस पूरी पढ़ा पाए। एसएसटी तो कोई लिमिट ही नहीं, और एसएसटी के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आ रहे हैं कुछ सालों में कि हमें वो कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एसएसटी मैं बिल्कुल लास्ट में रखता हूँ, स्कोर के तौर पर एसएसटी को मैं बिल्कुल लास्ट में रखता हूँ। और जब मेरी क्लासेस चलती भी हैं तो कहीं ना कहीं मैं एसएसटी को बहुत कम कवर करा, बहुत कम मैं कवर कराता हूँ। जो मुझे लगता है ये इजी चीजें हैं या कराता हूँ तो इतनी शॉर्ट में कवर कराता हूँ, जस्ट एक लेयर पढ़नी होती है। एसएसटी ऐसा नहीं स्किप कर देना, एज अ सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते,
ऑब्वियसली 50 मार्क है उसका, तो कहीं ना कहीं 20-25 मार्क्स का वहां से आ जाता है एसएसटी से, तो आप स्किप नहीं कर सकते, बट यू जस्ट नीड टू रीड अ लेयर। और ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो अपनी स्कूल का भी पढ़ रहे हैं तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ये लेयर बाय लेयर चलता है। तो आपकी जो स्कूल्स की बुक है, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एसएससी। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कई बार माइंडसेट ये होता है कि हमें पढ़ना है। देखिए जो एसएसटी है ना, या कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस है या मैथ्स है, हर बच्चे का एक स्टैंडर्ड होता है और हर क्लास का एक स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए क्लास बनाई गई। अगर मैं क्लास 6 में ही सारी की सारी एसएसटी, सारी की सारी साइंस, सारी की सारी मैथ्स थोपने वाला हूँ बच्चे पे, तो कवर तो नहीं होने वाला है उसमें। ठीक है, बाकी हम लोग अपने अगले वीडियो में जो बची हुई चीजें उनको कवर अप करेंगे। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब एंड फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।